Hello, students. I welcome you once again to this online video lecture series. And this is the third lecture on the chapter Journey to the End of the Earth, whose author is Tishani Doshi. In this chapter, as we have already told you, that the writer is talking about an academic trip to Antarctica along with a group of students. So we had paused on page number 20, and today we will start from the subheading that is human impact. So I read, human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. In that short amount of time, we've managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, megacities. So what is Tishani Doshi telling us? She is saying that what is the human impact of and the impact of the human actions upon our planet, upon our nature. Okay, so she is telling us that the earth is very, very old, but as compared to that, human beings have existed on the planet for merely 12,000 years, according to science. So this 12,000 years, when it is compared to the age of the planet itself, it is very small. It is in fact barely a few seconds, you can say, when it is compared to the age of our planet. So she is telling us that although the human beings have existed for such a short period of time on the planet, their impact or their actions and the results of their actions have been very, very huge. And they have created quite a ruckus, she's saying. Now, what is a ruckus? Ruckus is a kind of a commotion, a noise or a disturbance. So, तिशानी दोषी के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट थोड़े टाइम के लिए कर रहे हैं, बट उन्होंने जो इतने थोड़े वक्त में ही जो इम्पैक्ट दिया है अर्थ पे वो कहीं ज़्यादा है, वो क्वाइट डिस्टर्बिंग है फॉर द प्लैनेट. ओके, and how we have created all this disturbance? By our villages, our towns, cities, megacities, by our factories, by our machines, automobiles. So all that we have invented has in some way or the other affected the peace on the planet. The rapid increase of human populations has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world, which is slowly but surely increasing the average global temperature. So she is telling us that the human actions have resulted in the increase of carbon dioxide in the atmosphere. तो हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा है. What is global warming? It is the collection of the harmful gases which are not able to escape the Earth's atmosphere because of the layer of carbon and other gases, and due to which the harmful gases do not leave the Earth, and the radiation is trapped inside the planet, which is leading to an overall rise in the global temperature. So ये सारे जो अर्थ पे जो गर्मी जो पैदा हो रही है, ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ गई है उसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए. वी नीड फॉसिल फ्यूल्स, वी नीड ऑल काइंड्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स जिनमें पेट्रोल, डीजल और हर तरह के जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, ये सारे में जो चीज़ें होती हैं इनमें बहुत सारे पॉइजनस गैस रिलीज होते हैं. For example, the chlorofluorocarbons are released from the air conditioners, and also the refrigerators release harmful gases. So all this gets collected in the atmosphere, and it does not allow the harmful gases to escape, which is overall leading to global warming. So Tishani Doshi is telling us that ये जो अर्थ के ऊपर जो ब्लैंकेट बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हमारी ग्लोबल टेम्परेचर को रेज कर रहा है.
Climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we know it? Maybe, maybe not. So she is telling us that all this rise in global temperature or whatever the changes are happening worldwide in the environment, in the nature, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हमारे एक्शंस की वजह से हो रहा है. तो अल्टीमेटली क्या होगा? देयर आर मेनी क्वेश्चंस. Scientists are putting up many questions for us to think about, like will the entire Antarctic ice sheet melt? ठीक है, जो एंटार्क्टिका में जो आइस शीट्स हैं, लेयर्स अपॉन लेयर्स, वो मेल्ट हो रहे हैं, वी ऑल नो. सो क्या वो पूरी तरह पिघल जाएंगे इसी तरह फ्रॉम टाइम टू टाइम, या ओशन करेंट्स जो पूरी दुनिया भर में जो क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओशन करंट्स, ओके, द सी ब्रीज एंड ऑल दैट, तो क्या ये सारे डिस्टरप्ट हो जाएंगे, जिनकी वजह से हर जगह बारिश होती है, कहीं ठंडा होता है, कहीं गर्म होता है मौसम. सो ये सारे जो सिस्टम्स है, विल दीज ऑल बी डिस्टरप्टेड? She is questioning the readers, and then she is telling us, will all this result in the end of the world? ओके, सो maybe not. ये एक कंटेस्टेड बात है कि वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सब हो रहा है. सो इट विल एंड someday or the other. Okay, Antarctica is the crucial element in this debate. Now she is telling us कि ये सारी चीज़ों के का फ्यूचर हम अश्योर तो नहीं कर सकते, बट वी कैन सर्टेनली गेस द फ्यूचर. और एंटार्क्टिका इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू गेसिंग द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट. Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. सो वो ये कह रही हैं कि एंटार्क्टिका इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये सब स्टडी करने के लिए, बिकॉज उसकी जो आइस के जो लेयर्स हैं उनमें बहुत पुराने मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स हैं. और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, कार्बन डेटिंग इज अ प्रोसेस, इज अ टेक्निक, साइंटिफिक मेथड, जिसके थ्रू हम या साइंटिस्ट जो होते हैं बेसिकली जो इस पे रिसर्च करते हैं, दे आर एबल टू फाइंड आउट द एज ऑफ सर्टेन things like certain rocks, the age of volcanoes, the age of trees, plants, ferns. Okay, so basically हर चीज़ की एज जो है उसके कार्बन डेटिंग को करके उस पता की जा सकती है. सो शी इज टेलिंग अस कि एंटार्क्टिका के आइस के अंदर बहुत लेयर्स के अंदर देयर आर द कार्बन रिकॉर्ड, जिसमें हम अर्थ के पास्ट को भी स्टडी कर सकते हैं, प्रेजेंट को भी स्टडी कर सकते हैं और प्रोबेबल फ्यूचर को भी स्टडी कर सकते हैं. So moving on, Students on Ice, the program one I was working with on the Shukaski, aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. Now she is talking about the program with which she was involved when she went to Antarctica. So इस program का नाम है Students on Ice. Okay, and ये बताती हैं कि उसका aim और objective क्या है. It aims at taking the high school students, जो 10th के level के जो students होते हैं उनको ends of the world तक ले जाना. So Antarctica is also one end of the world. It is one of the extremes. North Pole is another end of the world. Extreme West is another end. So इस तरह से वो अलग अलग बहुत far off places में students को लेकर के जाते हैं, so that they are equipped with the न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द प्लैनेट. क्योंकि प्लैनेट को जब आप पूरी तरह देखते हैं तो आप उसकी ग्रेटनेस को समझते हैं और आप अपनी हम्बलनेस को भी समझते हैं कि आपको एक हम्बल ह्यूमन बीइंग की तरह इस पे अपनी लाइफ को गुजारना है. यू डोंट हैव टू बी मास्टर्स ऑफ द प्लैनेट. ओके,
It's been in operation for 6 years now, headed by the Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. So ये बताती हैं कि उसके जो हेड हैं वो कौन है, एक कैनेडियन है जिनका नाम है जियोफ ग्रीन. सो दिस इज अ वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम. आपको जानना होगा बिकॉज अगर एग्जाम में इस प्रोग्राम के बारे में लिखने के लिए आता है, सो यू हैव टू राइट अबाउट द डिटेल्स ऑफ द शिप दैट इज एकेडमिक शोकाल्स्की. Okay, about this program, Students on Ice, and the कौन इसको हेड कर रहा है, all this information is necessary. Okay, so it is headed by a Canadian, that is Geoff Green, और ये 6 years से ये ऑपरेशन में अभी है. ओके, एंड जियोफ ग्रीन के बारे में ये क्या बता रही है कि वो पहले क्या करते थे, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर जाते थे. जो सेलिब्रिटीज़ रिटायर्ड होते थे या जो इंटरेस्टेड होते थे इन सब एक्सकर्शंस में, इन सब ट्रिप्स में, वो उनको लेकर जाते थे. बट अल्टीमेटली जियोफ ग्रीन रियलाइज्ड दैट इट वॉज गिविंग बैक इन अ वेरी लिमिटेड वे. जो एक एज के लोग होते हैं वो चीज़ों को उनके अंदर ग्रास्प करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है. जो यंग माइंड्स होते हैं उनके अंदर हर चीज़ फ्रेश होती है, हर चीज़ के लिए एक एक्साइटमेंट होता है, एंथुजियाज्म होता है, ठीक है, और उनका माइंड फ्रेश होता है, उसमें कोई भी चीज़ बहुत इजीली ग्रास्प हो जाती है एंड दे कैन इवन वर्क टुवर्ड्स इट विथ अ न्यू पैशन. बट जो रिटायर्ड लोग होते हैं दे आर नॉट एबल टू गिव बैक इन सच अ गुड मैनर. सो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अब यंग बच्चों को लेकर के ऐसे ट्रिप्स पे जाएंगे सो दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द प्लैनेट, बिकॉज ऐसे बच्चे आगे चल के रिसर्चर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे. ओके, सो with Students on Ice, he offers the future generation of policy makers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. So, एज आई टोल्ड यू, ये बच्चों को क्यों ले जा रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसको सीखेंगे और एक्ट करेंगे. एक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए जनरली क्या होता है कि हम चीज़ों को देखते हैं, हम चीज़ों को समझते भी हैं, बट हम कहाँ पीछे रह जाते हैं, हम एक्शन में पीछे रह जाते हैं. तो बड़े बड़े प्लान्स बनाना इज़ गुड, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है, और जिसके अंदर वो पैशन होगा वही उस काम को अंजाम तक लेकर जाएगा. सो दिस इज़ द वे दैट जियोफ ग्रीन इज़ एक्सपेक्टिंग द यंग पीपल टू डू. वो चाह रहे हैं कि आगे चल के वो लोग कुछ करें, सिर्फ देख करके बैठ ना जाए. ओके, सो the reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It's easy to be blazed about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see the glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. So what is Tishani Doshi telling us? वो बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया, बिकॉज आप साउथ पोल जाएंगे अगर, या अगर आप साउथ पोल जाते हैं या ऐसे किसी भी एंड ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं, तो आप उसको अपनी आंखों से देखते हैं. ओके, और आप जब उसकी रियलिटी को देखते हैं तो उसकी रियलिटी आपको बहुत डेप्थ्स में टच करती है. इट टचेज योर डेप्थ्स. ओके, एंड शी इज फर्दर सेइंग कि इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज्ड अबाउट द पोलर आइस कैप्स. हम सुनते हैं हमेशा, नेशनल ज्योग्राफिक में सुनते हैं, डिस्कवरी चैनल पे सुनते हैं, हर जगह सुनते हैं, पढ़ते हैं दैट आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है. बट ये सब हम कहाँ सुन रहे हैं? अपने घर के सुकून के ड्राइंग रूम में बैठ के सुनते हैं, ठीक है, अपने घर में बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर में हम बैठ के सुनते हैं. सो वो थोड़ी देर तक हमारे दिमाग में रहता है एंड देन इट गेट्स लॉस्ट समवेयर. ओके, बिकॉज वी ऑल्सो गेट लॉस्ट इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज.
But this program, it has become so successful because ये बच्चे जो हैं वो अपने घरों में बैठ के ये बात नहीं सुन रहे, वो वहाँ जाकर उस चीज़ को देख रहे हैं, वो अपनी नज़रों के सामने, they can see the ice caps melting, they can see the avalanches rushing down through the mountain sides, and they can see the icebergs collapsing. So ये सारी चीज़ें जब वो देखते हैं, when you see it from your own eyes, तो ये आपके ऊपर बहुत भारी impact होता है इसका. Okay, you get impacted in a manner which makes you think and which makes you act as well. So this is very important, and this program has become a rage among the young people. Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये फिर से अंटार्कटिका की इम्पोर्टेंस हमें बता रही है कि अंटार्कटिका का इकोसिस्टम बहुत सिंपल है और वहाँ पे कंपैरेटिवली हर चीज़ बहुत साफ सुथरी है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट. तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी कम है और वहाँ पे चीज़ों को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं. क्यों? बिकॉज वहाँ पे हर चीज़ बहुत सिंपल है और एक छोटा सा एक्शन एक बहुत बड़ा रिजल्ट वहाँ दिखाता है. ठीक है, आपको इंस्टेंट एक्शन और इंस्टेंट रिजल्ट वहाँ देखने को मिलता है. इसलिए अंटार्कटिका इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि आप अपने एनवायरमेंटल डे टू डे एक्शंस का वहाँ पे डे टू डे रिजल्ट भी देख पाते हैं. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. ये अब क्या बता रही है? ये हमें एक इकोसिस्टम का बेसिक बता रही है कि अंटार्कटिका के इकोसिस्टम में बहुत बेसिक लेवल पे जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन करते हैं? वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स करते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं. आपने कहीं सुना होगा या इनके बारे में पढ़ा होगा. सो फाइटोप्लैंक्टन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द फूड चेन. जैसे यहाँ पे ट्रीज है, ग्रासेस है, तो वहाँ सदर्न इन द साउथ ऑफ आवर प्लैनेट दैट इज इन अंटार्कटिका, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स फूड चेन के स्टार्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है. ओके, सो वहाँ पे ये जो इतने इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये पूरा कौन सपोर्ट कर रहा है? फाइटोप्लैंक्टन्स. बट अब आगे क्या है देखिए. साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल. सो देखिए आप, हमारे एक्शंस का कहाँ से कहाँ तक इम्पैक्ट पहुँच रहा है. ये जो ग्लोबल वर्ल्ड में पॉल्यूशन हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरे दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसका इफेक्ट हमको अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा दिख रहा है. क्यों? क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है और ओजोन लेयर के डिप्लीशन से जो हार्मफुल अर्थ की रेज जो हार्मफुल रेज आ रही है सन की अर्थ की तरफ, वो फाइटोप्लैंक्टन्स की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रही है, उसके फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब कर रही है. अब जब फाइटोप्लैंक्टन्स डिस्टर्ब होंगे तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होगा, पूरा सदर्न फूड चेन डिस्टर्ब होगा. प्रोड्यूसर्स जब डिस्टर्ब होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर डिस्टर्ब होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर डिस्टर्ब होंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स डिस्टर्ब होंगे. So this is how the entire food chain is going to be affected, and it will result in the death of many marine animals and birds. So ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है जिसकी वजह से पूरा कार्बन साइकिल पूरी दुनिया का डिसरप्ट हो सकता है. In the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. So she is giving a very important message कि इस कहानी में ये जो इन्होंने छोटी सी कहानी सॉर्ट ऑफ बताई, फाइटोप्लैंक्टन्स की जो स्टोरी हमें सुनाई, इसमें हम क्या सीख ले सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, मगर उनकी वजह से इतने बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं, पूरी दुनिया को इसका लॉस बेयर करना पड़ सकता है. सो व्हाट इज दिशानी दोशी टेलिंग अस? शी इज सॉर्ट ऑफ अलार्मिंग अस, शी इज सॉर्ट ऑफ वार्निंग अस
कि हमको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना होगा, उन पे ध्यान देना होगा, उनको निग्लेक्ट नहीं करना होगा, क्योंकि अगर हम छोटी चीज़ को निग्लेक्ट करेंगे तो बड़े बड़े लॉसेस हमारे खुद होंगे. ओके, एंड शी इज टेलिंग अस टू टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. तो जिस तरह हमारे छोटे छोटे एक्शंस बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं, उसी तरह हम अपने छोटे छोटे एक्शंस टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट, टू लेसन द पोल्यूशन, टू यूज मोर सस्टेनेबल टेक्निक्स, ओके, सो दैट पोल्यूशन कम हो. तो ये सारे हमारे जो छोटे छोटे एक्शंस हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करना, साइकिल यूज़ करना, वॉक करना और एसीज कम यूज़ करना, और इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं उनको यूज़ करना. सो ऑल दीज लिटिल लिटिल एक्शंस विल हेल्प अस to save the planet and ultimately it will help us to save our own lives. और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं so it will also lead to a large scale disaster. Okay, so ये जो है, this is a kind of alarm for us from the side of the writer. So this is where we are going to pause today. This is page number 22 in your book Vistas, and if you are following some other book, then please see where we are stopping today, and in the next class we will continue with the last part of the chapter. Until then, once again I'll request you to read the chapter because it is a very factual reading and it is a very interesting chapter. So keep reading until we meet again. Thank you and see you.